Okay, hello everyone. In the last lecture, we were discussing regarding the cloning vectors, right? So, yeah, we have seen the ORI, we have seen the selectable markers, we have seen this figure which has been taken from the NCRT, right? So, this is the figure of E. coli cloning vector, that is PBR322, and this is the abbreviations of that. So, we were discussing regarding the cloning site. As I said earlier, it is a recognition site. If your plasmid is having more recognition site than restriction enzyme, that is your restriction endonuclease, would be confused where to cut and where not to, right? So first of all, I will make you understand by an example. Here there are two antibiotic resistant site, that is ampicillin resistance and tetracycline resistant site. Means the particular organism can resist those two condition and survive. Means they can survive in ampicillin medium as well as they can survive in tetracycline medium. Okay, so if I am inserting a particular my gene of interest over here, that is in ampicillin resistant site, and if I would allow it to grow in ampicillin medium, then this organism won't grow. Why? Because the ampicillin resistant site, we are inserting the gene over here, so the resistance power of the particular plasmid is been gone. Similarly, in case with tetracycline, say for example, if I am inserting a gene, my gene of interest, a foreign DNA over here, it means that the particular plasmid have now lost the capability of tetracycline resistance, so it won't grow in tetracycline antibiotic. So now I am going to make you understand by an example, okay, which is given in your NCRT. So here now we are going to insert a gene, our gene of interest, or say as foreign gene, in this BAM-H1 site, which is a site of tetracycline resistant gene. After inserting, I would allow it to grow in a particular plate, that is normal nutrient agar plate. अब मैं इसमें क्या करूँगी कि as I have already inserted a gene, my gene of interest in BAM-H1, which is a tetracycline resistant था, वहाँ पे मैंने ये मेरे gene of interest को I have inserted. Now I would allow it to grow in a plate. एक प्लेट में मैं इसको ग्रो करने दूंगी. Now इसके एडिशन में मैं दूसरा दो प्लेट बनाऊंगी. In one I would add the ampicillin, and in second I would add the tetracycline. So in ampicillin में ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं. फर्स्ट प्लेट जो एम्फिसिलिन प्लेट था उसमें ऐसे ही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं जिसके एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइड को हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया होगा, तो ही इट कैन ग्रो इन दैट पर्टिकुलर प्लेट. सिमिलरली सेकेंड प्लेट विच इज टेट्रासाइक्लिन, वहाँ पे ऐसा ही ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है जिसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पोर्शन में कुछ गड़बड़ी नहीं किया गया हो, मतलब कि ओरिजिनल टेट्रासाइक्लिक पोर्शन रेजिस्टेंट पोर्शन वुड बी वन एंड द सेम विदाउट एनी टाइप ऑफ द इंसर्शन. सो अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो हमने जो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर प्लेट बनाया था जिसमें वी वर हैविंग द BAM-H1 साइट में हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था कट करके विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. वी हैव इंसर्टेड अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर. इसको मैंने ग्रो किया है इन विच प्लेट, इन द मास्टर प्लेट. अब मैं एक रेप्लिका ब्लॉक लूँगी. नो व्हाट इज रेप्लिका ब्लॉक? हैव यू सीन द स्टैम्प? स्टैम्प में कैसा होता है कि वो जो इंक पोर्शन होता है वो हम वी वुड टेक अ स्टैम्प एंड वी वुड फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इन दैट, एंड फिर हम जिस पेपर पे लगाना हो उस पेपर पे हम स्टैम्प करते हैं, राइट? सिमिलरली रेप्लिका ब्लॉक का काम सिमिलर होगा. हम मास्टर प्लेट लेंगे, मास्टर प्लेट में ये जो स्टैम्प पोर्शन होता है ना उसकी तरह एक पकड़ने की चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिका ब्लॉक. उसको हम ये मास्टर प्लेट में स्टिक करेंगे. उसके बाद वी विल स्टिक इट इन द एम्फिसिलिन प्लेट फर्स्ट, क्योंकि हमने 3 प्लेट लिया था. फर्स्ट वॉज द मास्टर प्लेट, सेकेंड वॉज द एम्फिसिलिन प्लेट एंड थर्ड वॉज द टेट्रासाइक्लिन प्लेट. सो फ्रॉम मास्टर प्लेट हम उसको स्टिक करेंगे कहाँ पे? एम्फिसिलिन प्लेट में. ऑब्वियसली एम्फिसिलिन प्लेट में हमारा जो इंसर्टेड था वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था. ओके मतलब कि हमने उस पोर्शन में, उस प्लाज्मिड में हमने एम्फिसिलिन पे कुछ किया ही नहीं था, तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो ऑन द एम्फिसिलिन प्लेट.
एम्फिसिलिन प्लेट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने डाला था वो तो ग्रो होने ही होने वाला है। उसके बाद हम उसको फिर से रेप्लिका ब्लॉक लेंगे, एम्फिसिलिन प्लेट में से उसे स्टिक करेंगे और टेट्रासाइक्लिन प्लेट में हम ग्रो करने की ट्राई करेंगे, स्टिक करेंगे। पर क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने इंसर्ट किया था वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ग्रो होगा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमने टेट्रासाइक्लिन प्लेट में डाला है, और टेट्रासाइक्लिन प्लेट में डाला है मतलब कि हमने किस पोर्शन पे इंसर्ट किया था? दिस बाम H1 पोर्शन विच इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पोर्शन था, उसमें हमने इंसर्ट किया था, मतलब कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी गड़बड़ी की थी। सो वो टेट्रासाइक्लिन पे कैसे ग्रो होगा? क्योंकि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट वो पोर्शन में है, तो वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो होने ही नहीं वाला है, राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन डिस्टिंग्विश के हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया कि नहीं गया, मीन्स रिकॉम्बिनेंट इज प्रेजेंट और नॉट, वी कैन कंक्लूड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, that it is a cumbersome experiment. We have to take the 2 plate, then we have to take a replica plate, then we have to do all this. This is a cumbersome and a time wasting process. So इसके बाद में a new process have been introduced which has been done by PUC8 plasmid. अब उसमें क्या किया गया है, they have chosen a specific coding sequence जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज पोर्शन। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज वो स्पेसिफिकली अ क्रोमोजेनिक पोर्शन है, मीन्स इट वुड गिव अ ब्लू कलर। तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज पोर्शन में हमने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया। अगर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है ये पोर्शन में, इट मीन्स दैट इट इज़ नाउ नॉट एबल टू गिव द ब्लू कलर, राइट। सो अब इससे हमें पता चलेगा कि when we are going to replicate this, when we are going to make the copies of it, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में है किस में नहीं है? विथ द हेल्प ऑफ दिस कलर फॉर्मिंग कॉलोनीज। कलर फॉर्मिंग कॉलोनीज कैसा? हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज पोर्शन पे जीन इंसर्ट किया था। अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज पोर्शन पे जीन इंसर्ट एक्चुअली हुआ है, उसकी कॉपीज बन रही है, उसमें आगे होने वाला है, इट मीन्स दैट इट वोंट गिव द ब्लू कलर, इट वुड गिव द वाइट कलर कॉलोनीज। अगर उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, देन इट इज गोइंग टू गिव द ब्लू कॉलोनीज। ओके, सो फ्रॉम दिस इट इज़ बीन क्लियर्ड कि कैसे वी कैन डिस्टिंग्विश वेदर इट आवर जीन इज बीन इंसर्टेड और नॉट। सो हियर वी हैव गॉन थ्रू 2 experiments. First one was of amphisilin and tetrasilin experiment, resistant experiment, and second was the blue-white colony experiment. I hope it has been cleared. Okay, so the second one हम जो blue white screening कहते हैं, जिसमें blue colonies and white colonies बनता है, that is also called as insertion inactivation process. Insertion inactivation क्यों? क्योंकि उसमें हमने हमारा specific gene insert किया है, जिसकी वजह से वो enzyme का जो property था of giving the blue color, it is inactivated. That's why this process is called as insertion inactivation process. Okay. Now last one, that is the vector for cloning genes in plants and animals. So for plants we are using the TI plasmid and for animals we are using the retrovirus. So कैसे? Okay, normally Agrobacterium tumefaciens वो एक पैथोजन है विच इज़ हैविंग अ प्लाज्मिड। सो उसका काम क्या होता है कि इट विल गो टू अ पर्टिकुलर प्लांट एंड वो नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट करता है। एंड सेम विद द केस ऑफ एनिमल्स, retrovirus, a specific retrovirus species is there which will convert the normal cells into the cancerous cells. It means that यहाँ पे a specific, if we modify this, हम अगर ये दोनों जो प्लांट का एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस हैं एंड जो एनिमल का रेट्रोवायरस है, ये दोनों का काम सेम है। इन दोनों का काम क्या है? दैट इट विल गो इनटू द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज आइदर प्लांट्स और एनिमल, एंड इट विल मल्टीप्लाई द सेल. In one case it will form the tumor and in other case it will form the cancerous cells. अगर हम इन दोनों में से वो विरुलेंस प्रॉपर्टी, मतलब कि जो कोई डिसीज कॉज करने की प्रॉपर्टी है, वो जीन पर्टिकुलर साइट की जीन को हम निकाल दें and we are going to insert a particular gene which is going to help that plant or that animal in any of the way, अगर हम उसे इंसर्ट कर दें और फिर यही बैक्टीरिया को, मतलब कि विरुलेंस प्रॉपर्टी ऑलरेडी निकाल दिया है, उसकी जगह अच्छी वाली प्रॉपर्टी डाल दी है विच इज़ गोइंग टू हेल्प द पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल इन एनी ऑफ द वे, और फिर हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, देन वोंट इट बी अ गुड आइडिया?
Yeah, because what is the purpose of our DNA technology? To multiply or to make many copies, right? तो सिमिलर प्रोसेस हम इसमें भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज ऑलरेडी बीन कॉजिंग. सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसका विरुलेंस प्रॉपर्टी हम निकाल रहे हैं और उसकी जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल रहे हैं, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. I hope now you have been clear with the essential features of the vectors, that is ORI, selectable markers, cloning site, vectors for cloning genes in plants and animals, right? Okay, now next is 11.2.3, that is competent host. Now हमें जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसे ऐसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है जिसकी वजह से इट वुड टेक द डीएनए, फॉरेन डीएनए अंदर जाना चाहिए ना, तो इट वुड हैव टू टेक द डीएनए. तो उसके लिए देर आर स्पेसिफिक टेक्निक्स. फर्स्ट इज ट्रीटिंग विद द डाइवैलेंट कैटायन, दैट इज कैल्शियम. सेकेंड वन इज द माइक्रो इंजेक्शन एंड थर्ड वन इज द जीन गन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ट्रीटिंग विद द डाइवैलेंट कैटायन. नाउ हम स्पेसिफिक होस्ट को वी वुड कीप इट ऑन अ प्लेट. सराउंडिंग में हम हमारा फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे. अब होस्ट ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉम्पिटेंट कि वो डीएनए को ले सके. तो फर्स्ट मेथड में क्या किया जाएगा कि वी विल ऐड द कैल्शियम. हम उस सॉल्यूशन में कैल्शियम ऐड करेंगे. तो जैसे ही कैल्शियम ऐड होगा वो क्या करेगा कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके पोर्स को ओपन अप करेगा. जैसे ही ओपन अप करेगा डीएनए वुड बी स्लोली गोइंग इनसाइड. आफ्टर दैट वी वुड कीप इट इन आइस में रखेंगे. पोर्स विल बी क्लोज. अगेन आफ्टर सम टाइम वी वुड बी गिविंग द हीट शॉक, दैट इज वी वुड बी कीपिंग इट इन द 42 डिग्री सेल्सियस. अगेन पोर्स ओपन होगा, मतलब कि अब जो अंदर डीएनए आने का बाकी है फ्रॉम द सॉल्यूशन इट वुड बी गेट इनसाइड. अगेन वी वुड कीप इट ऑन आइस, मतलब कि जो पोर्स ओपन है वो क्लोज होगा. ऐसे वी वुड मेक द होस्ट कॉम्पिटेंट कि वो हमारा डीएनए अंदर ले सकेगा. सेकेंड वन इज द माइक्रो इंजेक्शन मेथड. नाउ इसमें क्या किया जाएगा कि डीएनए विल बी डायरेक्टली इंजेक्टेड टू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल. डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो इंजेक्शन. सो डायरेक्टली उसके डीएनए के साथ मिक्सअप हो जाएगा क्योंकि वी आर डायरेक्टली इंसर्टिंग इट इन द न्यूक्लियस. Now third one is the gene gun method. Now in this, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA, and after that this method is we are calling as gene gun method. इसमें क्या किया जाएगा कि वी वुड बी विद हाई वेलोसिटी हम इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में बम्बार्ड करेंगे. जैसे ही बम्बार्ड करेगा ये हमारा डीएनए किससे कोट होगा? इट वुड बी कोटेड विद द गोल्ड और टंगस्टन एंड इट वुड डायरेक्टली इंसर्टेड इनसाइड बिकॉज ऑफ द फोर्स, राइट? So now I hope you are being cleared with each and every terms of this lecture. Right, from the next lecture we are going to see detailedly regarding the process of recombinant DNA technology. उसमें isolation हम कैसे करते हैं, कौन सा enzyme use करते हैं, everything we are going to see. So अभी तक जितना we have covered, go through it fully. कुछ बाकी मत रखना. If you are not cleared up till now, then you are not going to understand from the further lectures. So please go through all the lectures. Okay, so this is the end of our lecture.